students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you're all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin a new poem, Courage. In this poem, we are going to read about the different dimensions of courage. In this poem, the poem is written by some anonymous writer. That anonymous writer is going to tell us about the different dimensions of courage. What are the ways to fight with courage? What are the ways to fight the situations that gonna face us, and how we gonna fight those situations with this courage? So let's begin the poem. Student, use your prescribed textbook for better understanding. Courage. Warm up. Here is a circle of courage. Write in the circle 8 words related to courage. Describe to your elbow partner the reasons for your choice of words. One has been done for you. So students, here you are asked to do the work related to courage. Write the words related to courage and tell your elbow partner to the reasons of writing those words. So we're gonna begin the poem. Before beginning the poem, we're gonna read this line. Read this poem to know what courage means to the poet. As I told, the poet is telling us about the different types of courage. So different dimensions of courage. So here we're gonna read that what is the courage according to this poet, who is anonymous. Anonymous means वो पोएट जो जिनके नाम हमें नहीं पता, जिसने ये पोएम लिखा, या फिर वो जो अपने नाम नहीं बताना चाहते, उन्हें हम एनोनिमस कहते हैं. अनजान, स्ट्रेंजर. Courage is the strength to stand up when it's easier to fall down and lose hold. It is the conviction to explore new horizons when it's easier to believe what we are being told. Courage is the desire to maintain our integrity when it's easier to look the other way. It is feeling happy and alive and moving forward when it's easier to feel sorry for ourselves and stay. Courage is the will to shape our world when it's easier to let someone else to do it for us. It is the recognition that none of us are perfect when it's easier to criticize others and fuss. Courage is the power to step forward and lead when it's easier to follow the crowd. Their pleas resound. It is the spirit that places you on top of the mountain when it's easier to never leave the ground. The foundation of courage is solid, the rock that doesn't roll. Courage is the freedom of our mind, body and soul. Anonymous. Written by Anonymous. So let's begin the explanation. Courage is the strength to stand up when it's easier to fall down and lose hold. Courage वो strength है स्टैंड अप होने के लिए जब हमें लगेगा कि हम गिरने वाले हैं, हमें उस पर हमारी जो मुश्किल वाली सिचुएशन है उसमें हम लोग पूरे डाउनफॉल होने वाले हैं, उस सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होने वाला है, तब हमें इस करेज को अपना स्ट्रेंथ बनाकर हमें हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और उसे स्टैंड अप होकर उस करेज का उस सिचुएशन का फेस करना है जो हमें when it's easier to fall down and lose hold. जब हमें लगेगा कि हम बस गिरने ही वाले हैं, उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकलने वाले, उस मुश्किल सिचुएशन से, और हमारी जो होल्ड है उस सिचुएशन के ऊपर वो छूट रही है, हमें जब ये पता चलेगा, उस वक्त हमें करेज को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, उसे अपना विल पावर बनाना है और उसे फेस करना है. It is the conviction to explore new horizons when it's easier to believe what we have been told. वो एक conviction means a firm belief, और जब हम किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं एक न्यू हॉरिजन्स के साथ, तब हमें क्या लगेगा कि
इट इज़ ईजियर टू बिलीव वॉट हैव बीन टोल्ड। उस वक्त हमें लगेगा, उस वक्त हम सारी चीज़ पर बिलीव कर लेंगे, जो भी हमें कोई कुछ कहने आएगा उस सारी चीज़ पर हम इजीली बिलीव कर लेंगे। तो हमें सबकी बात नहीं सुनना है, हमें अपनी बात, सबकी बात सुनना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपना दिमाग से काम लेना है। उस वक्त हमें इस करेज को अपना ताकत बनाना है। हम उस टाइम अगर हम लोग अपने करेज को यूज़ करेंगे तो हमें किसी से बिना डरे उनकी बातों को सुनना है, पर उसे हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है हम पे। उस समय हमें करेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने किसी की बात को ठुकरा कर अपनी बातों को पहला इम्पोर्टेंस दिया है। तो इट नीड्स अ करेज टू डू दैट। उस वक्त हमें करेज की ज़रूरत है, क्योंकि वही करेज हमें एक नया हॉरिजॉन्स को देखने का मौका देगा, एक नया वे देखने को मौका देगा। जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, अगर हम लोग अपनी बातों से अगर उस चीज़ को करेंगे तो वो हमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। तो पोइट यही कहना चाह रहे कि सुनिए सबकी बात, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको ये करेज मिलेगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसे एक नई तरीके से देखने का मौका मिलेगा। Courage is the desire to maintain our integrity when it's easier to look the other way. करेज एक चाहत है हमारी ऑनेस्टी को मेंटेन रखने का। It's a desire to keep our honesty maintained when it's easier to look the other way. जब हमें लगेगा कि हम कोई दूसरे रास्ता पे जा रहे हैं, मतलब किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कोई भी कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, उस समय हम लोगों को अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखना है। और ऑनेस्टी को बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? करेज की। तो करेज एक वो चीज़ है जो हमें अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखने में हेल्प करेगा। हम तभी ऑनेस्ट हो पाएंगे जब हम में करेज होगी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम इस चीज़ को एक अलग तरीके से कर सकते हैं। हम किसी के साथ अगर बुरा नहीं करना चाहेंगे तो we need courage to do that, because it's easier to fool people, but if we go in a honesty way it's difficult, so we need courage to do that. It is feeling happy and alive and moving forward when it's easier to feel sorry for ourselves and stay. वो feeling happy है, it is feeling happy and alive and moving forward. हम happily जी रहे हैं और अपने आप को बस चल रहा है तो चल रहा है। और जब हम अपने बारे में वो टाइम बहुत ही ये है जब हम अपने बारे में बहुत सॉरी फील करेंगे और बस यूं ही बैठे ही रह जाएंगे। मीन्स हम लोग और कोशिश ही नहीं करेंगे कि कुछ नया करें अपनी लाइफ में। उस समय हमें करेज का बहुत ज़्यादा नीड है। हम में अगर कुछ करने की करेज होगी तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो इससे क्या होता है कि हम हैप्पी और अलाइव हैप्पीली जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग करेज को नहीं, बस ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, करेज का मतलब कोई हिम्मत ही नहीं रहेगी कि करने में, उस चीज़ को डर के बैठ जाएंगे तो बस हमेशा अपने बारे में सॉरी फील करते रहेंगे और ऐसे ही बैठे रह जाएंगे घर पे। इसीलिए अगर हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें डरना नहीं है। अगर हम लोग डरेंगे तो बस जहाँ है वहीं रह जाएंगे। इफ़ वी गो विद द करेज, अगर हम करेज के साथ सोचेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे उसमें। Courage is the will to shape our world when it's easier to let someone else do it for us. करेज एक माउल्ड की तरह है जो हमारे वर्ल्ड को शेप करेगा। अगर हम करेजली अपने वर्ल्ड, मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें हम लोग अगर ऑनेस्टी से कुछ करना चाहेंगे तो करेज हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर हम चाहेंगे कि नहीं, हमें गलत रास्ता पे नहीं जाना है, हमें जो भी करना है ऑनेस्टी से करना है, तो हमें उस समय बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। करेज जो है हमारे वर्ल्ड को शेप करता है। इससे हमें एक इमेज मिलती है, हमें एक रिकग्निशन मिलता है। इससे लगेगा कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है। अगर हम सही पे चल रहे हैं तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। आगे चलकर हमें वो एक
पहचान देती है, हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, हमारे वर्क्स की वजह से हमारी पहचान होती है। तो इसीलिए courage is the will to shape our world when it's easier to let someone else to do it for us। और वो अगर हम किसी और के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद हिम्मत करके खुद हमें अपना काम खुद करना चाहिए। कोई भी वेंचर को कोई भी स्टार्ट करना है तो हमें खुद अपने आप को एक मौका देना चाहिए। अगर हम लोग बैठे रहेंगे कि चलो वो कर देगा मेरे लिए, दैट्स वेरी रॉन्ग। हम उस पर कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी नेवर डे टू डू दैट, क्योंकि हमें करेज ही नहीं आएगा। उसके बाद अरे वो है ना, वो कर देगा, हमें क्या है, वी विल फील लाइक दैट। It is the recognition that none of us are perfect when it's easier to criticize others and fuss. It is the recognition that ये वो रिकग्नाइजेशन है जब हम दूसरों के बारे में करते हैं। मतलब वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत इजी है, दूसरों के बारे में बात करना तो बहुत इजी है। उनके बारे में बातें बनाओ, मतलब ये बोलो वो बोलो। अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम जेलसी से हाँ वो तो ऐसे ही कर लिया होगा, उसमें क्या है, उसका कोई होगा बैकग्राउंड जो उसे सपोर्ट कर रहा होगा। दैट्स वेरी बैड। हमें वैसे लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है और इट्स वेरी हार्ड टू बी अ परफेक्ट, और परफेक्ट बनना बहुत ही हार्ड है। सो वी हैव टू ट्राई टू बी परफेक्ट। और ऐसा नहीं कि हार्ड है तो हम लोग छोड़ देंगे। वी नीड टू यूज़ द करेज एंड गेट परफेक्ट, मेक आवरसेल्फ परफेक्ट विद द वर्क्स। सो पर हम परफेक्ट हो गए ये कहकर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन अपने आप को परफेक्ट बनाना उतना ही मुश्किल है। हम दूसरों को तो क्रिटिसाइज़ कर देंगे उस वर्क के लिए, जब हमें वो उस वर्क को करने की बारी आएगी वी विल गेट टू नो दैट हाउ हार्ड इट वॉज टू डू। कितनी करेज की ज़रूरत पड़ी होगी उन्हें वो चीज़ करने के लिए, टू कंप्लीट दैट वर्क। सो इट्स वेरी बैड टू क्रिटिसाइज अदर एंड टॉकिंग एनीथिंग बैड और फर्स्ट अबाउट देम। सो वी यूज़ हमें जब पता चलेगा कि हम जब वो चीज़ को करने जाएंगे तब वी गेट टू नो दैट ओ अच्छा ये ऐसा था, उससे तो बहुत मुश्किल होगी ये सब करने में। ओके, करेज इज़ द पावर टू स्टेप फॉरवर्ड एंड लीड व्हेन इट्स ईजियर टू फॉलो द क्राउड दैट दे प्लीज अराउंड। प्लीज अराउंड मीन्स रिक्वेस्ट इको। करेज वो पावर है हमें आगे बढ़ने की, हमें लीड करने की, और ना ही पीछे रहकर क्राउड में हाँ प्लीज़ कर दीजिए ना, प्लीज़ ये वर्क कर दीजिए ना, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी चीज़ को लीड करना है, किसी हमारे लाइफ को ही लीड करना है, तो वी नीड अ करेज to be a good person in our life. We need so much of courage to do all these things. So courage वो है जो हमें, वो पावर है जो हमें हमेशा आगे रखेगा। अगर करेज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम सोचेंगे yes we have to do that, तो हम बिल्कुल भी, तो करेज वो चीज़ है जो हमें पीछे से पुश करेगा वो चीज़ करने के लिए, और हम उस चीज़ पे सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और वो बहुत आसान है वो चीज़ करना, भीड़ में रहकर सबके जैसा सबके साथ मिलकर, ये बिकॉज उसमें तो किसी को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं। अगर हमें खुद की पहचान बनाना है तो हमें भीड़ से निकलना है, भीड़ से निकल कर हमें खुद की पहचान बनाना है, तब जाकर हमें कोई रिकॉग्नाइज़ करेगा, हाँ ये पर्सन ऐसा है, किसी के पहचान में आएंगे। भीड़ में रहेंगे तो हमेशा खोया ही रहेंगे, हमेशा हम लोग उस भीड़ में खोते ही रहेंगे, कभी हमें उसमें कुछ हमारे लिए कुछ मिलेगा नहीं। सो हमें उस भीड़ से निकल कर अपने लिए कुछ करना है। तो इसमें पोइट ये बता रहे कि करेज वो पावर है जो हमें ये सब चीज़ करने के लिए मौका देगा, ये सब चीज़ करने में हमें पुश करेगा, हमें हमेशा ये सब चीज़ करते वक्त वो हमें आगे रखेगा। It is the spirit that places you on the top of the mountain when it's easier to never leave the ground. वो हमारे अंदर की स्पिरिट पावर होती है, विल पावर होती है, जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने की मौका देती है। अगर हमें विल पावर है तो हम जो सोचे हैं करने को वो हमेशा कर सकेंगे। When it's easier to never leave the ground, और जबकि
अगर हम लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि उतना टॉप वो तो होगा ही नहीं हमसे, वो उतना बहुत हार्ड है, तो हमेशा हम ज़मीन पे ही रह जाएंगे, उस सक्सेस के टॉप पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये चीज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होगी। अगर एक माउंटेन भी चढ़ना रहेगा तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होगी। ये सोच कर ये तो बहुत बड़ा माउंटेन है, इसमें कैसे चढ़ेंगे, तो हम हमेशा ज़मीन पे ही रह जाएंगे, कभी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। ट्राई भी नहीं करेंगे तो हम हमेशा नीचे ही रह जाएंगे। सो अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो हमें करेज हेल्प करेगी कि हाँ और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ऐसा करते करते और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कब टॉप पर पहुंच गए। The foundation of courage is solid, the rock that doesn't roll. The foundation of courage वो जो है बहुत ही सॉलिड है। एक बार अगर हमारे अंदर हिम्मत आ गई तो उससे और कोई नहीं हटा सकता और हमें भी कोई नहीं रोक सकता। मीन्स भी हम वो काम करके ही रहेंगे, हमें वो काम करके दिखाना ही है। उसे कोई पत्थर को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा हमें कि कोई हमें हिला भी नहीं सकेगा, हमारे विल पावर को हिला नहीं सकेगा। हमारे अंदर जो विल पावर, जो करेज बन चुकी है उस काम को करने के लिए, उसे और कोई भी हिला नहीं सकेगा। करेज इज़ द फ्रीडम ऑफ आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। करेज वो फ्रीडम है, हमारे माइंड, बॉडी और सोल को पूरी तरह फ्री कर देता है। करेज के साथ अगर हम कोई वर्क करेंगे तो इसमें हमारे माइंड को एक न्यू एडवेंचर मिलेगा कि हाँ इतने सारे वैरायटी है करने को लाइफ में, बिल्कुल करना है। करेज के साथ अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर जो भी करना चाहेंगे लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल होके रहेंगे। सो इससे क्या पता चलता है कि हमें करेज हमारे अंदर हमेशा रखना है, हमें हमेशा ज़िंदा रखना है करेज को, और अपने विल पावर को कभी नहीं टूटने देना है। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू मूव फॉरवर्ड। यही दो चीज़ें हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने में काम आएगी। करेज है कि कोई भी काम को हम लोग बिना डरे कर सकते हैं, और विल पावर है कि हमें हाँ बस ये करना है तो करना है, हमारे अंदर की जज्बा को टूटने नहीं देगी। So students, here is the poem. I completed it. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. It's a beautiful poem. Read it, nicely read it, try to understand it. In the next video, we are going to discuss the question and answers of this poem.